guys, welcome everybody. I'm so happy to see you today morning. I just wish कि हर morning ना ऐसे like happiness से start हो तो कितना अच्छा. So let's see how we can learn the art of happiness, and for that I'll just begin first with the dance, with the music number, because physiology changes our psychology, and let's dance on the tunes to increase our vibe. So a warm welcome to everybody here, and a huge round of applause to everyone who decided to join in today's happiness challenge. We will be discovering today the art of happiness and the most basic foundation, that is self-love. Because to enjoy everything in life, the most important thing that is needed is self-love. जब हम खुद को प्यार करते हैं तो ही हम बाकियों को प्यार कर सकते हैं. This many times we forget. I will take you to this further कि ऐसा क्यों है. First of all, guys, do you want more happiness in your life? Type in the chat box, do you want more happiness in your life? Or you can unmute and say, yes, I want more happiness in my life. Arishika, Jayashri, Karishma, Leena, show your energy. I want more happiness. Yes, Arishika wants more happiness. Karishma has typed in the chat box, she wants more happiness. Leena is also saying more. Jayashri also more. I love that chat box and I love the energy in my room. Thank you, guys. Thank you. Keep the same energy throughout, and by the time we end the session, I am sure you will leave from here with some of the amazing tips to be happy. Who does not want to stay happy from you? कोई है यहाँ पे? Anybody? I don't think so. हर किसी को happiness चाहिए. The end product of everything in our life is happiness. चाहे वो हमारे goals हो, चाहे वो हमारे बच्चे हो, family हो, चाहे वो हमारे vacations हो, travel हो, whatever. Ultimately हमें वहां पे क्या ढूंढ रहे होते हैं हम लोग? खुशी, happiness, joy. So that's what we will be discovering. So now tell me, what is your definition of happiness? What is happiness according to you? Type in the chat box or you can unmute and say. Yes, anybody? Yeah, Leena, tell. बोलिए, what is your definition of happiness? According to you, what is happiness? If you love people, happiness comes automatically. Wow, that's very true. जब हम दूसरों को प्यार करते हैं तो हमारे अंदर खुशी आ जाती है. How about Ishika, Jayashri, Karishma? What is your definition of happiness? For me, it's like when I'm putting effort on something and I get results of that, whatever it is. Like it don't have to be any work or anything, but anything where I'm putting my energy and I get back what that is happiness for me. So it can be like growing a plant, like a small plant. I'm just feeding it and it keeps blooming. That is happiness for me. Yes, absolutely. जहां पर भी हम लोग हमारे एफर्ट्स डालते हैं, डेफिनेटली हम लोगों को जब उसका रिजल्ट मिलता है तो हम खुश होते हैं. Right. How about Jayashri, Karishma? Okay, so let me tell you what is happiness according to me, because see, हर एक का definition change हो जाएगा happiness का. Even for you, the same definition that you are sharing now, it might change later, because our happiness depends on the situations that we are currently in, the environment we are currently. So happiness is basically a state of mind depending on the environment. Karishma is typing, happiness is khushi, love, laughter, everything that I need, I have.
एब्सोल्युटली, जो हमें चाहिए वो सब हमारे पास हो तो हमें लगता है हम खुश हो जाएंगे. बट देयर इज अ लिटिल बिट, यहाँ पे एक ग्लिच है गाइस, कि हमको ऐसा लगता है कि हमारे पास जो होगा ना तब हम खुश हो जाएंगे, लेकिन ये जो चीज है ना, इट गोज इन अ साइकिल. यू नो व्हाई? हाँ, हमें जो चाहिए वो मिलता है तब हम खुश हो जाते हैं, बट आफ्टर सम टाइम अगेन वी स्टार्ट विशिंग फॉर समथिंग एल्स, समथिंग एल्स, समथिंग एल्स. और जैसे जैसे वो चीजें हमें मिलती जाती है आगे, ऐसा नहीं है कि हम नहीं खुश होते हैं. आफ्टर दैट पॉइंट वी अगेन स्टार्ट फाइंडिंग एंड लुकिंग फॉर सम अदर थिंग, क्योंकि है ना, एक टाइम के बाद ना वी हैव द मेंटालिटी बीइंग अ ह्यूमन बीइंग कि हमें चेंज चाहिए होता है. सो एवरी टाइम वी स्टार्ट लुकिंग फॉर डिफरेंट थिंग्स टू बी हैप्पी. अगर आप लोगों को सपोज कि आज की तारीख में आज की तारीख में आपको आइसक्रीम खाने से हैप्पीनेस मिलती है, आपने कंटिन्यूअस 10 दिन महीने आइसक्रीम खा ली, तो आफ्टर दैट आप लोग एक दिन बोलोगे नाउ आई एम डन विद आइसक्रीम यार, अब मुझे आइसक्रीम कोई खुशी नहीं दे रही है. ओके, सो the definition of happiness will keep on changing, but what we should focus on is कि happiness हमारी कभी भी बाहर के एनवायरमेंट के ऊपर जब हम लोग डालते हैं, दूसरों के ऊपर जब हम लोग डालते हैं, तो वी विल नॉट बी श्योर कि हमें वो मिलेगी या नहीं मिलेगी. सो आई विल रिक्वेस्ट यू एवरीबॉडी कि कॉन्शियसली मेक द एफर्ट्स कि आप हैप्पीनेस अपने अंदर ढूंढो, उसकी सारी डिपेंडेंसी अपने ऊपर रखो. ओके, इट शुड नॉट based on external factors, may it be people, person, place, anything. So try that all these things are dependent on you and nobody else, because if it depends on you, then and only then you have the guarantee. Otherwise आप दूसरों के भरोसे बैठोगे तो कोई गारंटी नहीं है. कोई भी गारंटी मैं नहीं देती हूँ कि आपको खुशी मिलेगी या नहीं, वो सामने वाले पे डिपेंड करेगा, वो सिचुएशंस पे डिपेंड करेगा. सो ऑलवेज 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 मेक एन एफर्ट कि यू ट्राई टू मेक all the situations dependent on you and only you. Okay, now why we are not happy, let's find out that. So okay, Jayashree is saying happiness is spending time with myself, doing things what I like, spending good time with my family and friends. Awesome, Jayashree, awesome. Hi Mona, good morning. So tell me guys, what makes you unhappy? ऐसी क्या चीजें होती है जो आपको unhappy बनाती है? Type in the chat box or just unmute and say. Yeah, I am looking for answers. Leena, Mona, Karishma. When things don't go as planned, like expectation, when expectations are not fulfilled, basically that. Yes. Karishma is saying unwanted situations. Right. So यही कॉमनली सबके यही रहेंगे बेसिकली, कि एक तो जो हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया है वैसा नहीं हो रहा है तो वी विल बी अनहैप्पी, या फिर एकदम से कोई ऐसी चीज आ जाए जो हमने एक्सपेक्ट नहीं की, जिसके लिए हम रेडी नहीं. राइट. सो यहाँ पे व्हाट वी हैव टू सी कि ऐसी चीजें होती रहेगी हमारी लाइफ में, अनवांटेड सिचुएशंस आती रहेगी, हमारी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होगी, बट दैट डजंट मीन कि हम लोगों को वो अनहैप्पी स्टेट में जाने की उस चीज को परमिशन देनी है. वहां पे क्या काम आएगा, दैट टाइम सेल्फ लव विल बी द थिंग that will help you to come back to your own state of happiness. Mona is saying expectation not met, undesirable situation. Yes, right. This both are the basic reasons जब हम लोग दुखी हो जाते हैं. Suppose कि if I have planned कि आज मैं मेरे फ्रेंड्स के साथ बाहर जाने वाली हूँ to party, and suddenly my daughter comes and tell me, मम्मा मेरा कल प्रोजेक्ट का डेडलाइन है और मुझे आपकी हेल्प चाहिए. Then
I have to either cancel my plan of going with the friends or I have to disappoint my daughter, right? ये दो चीजें हो सकती है अब. But in both the cases, I am not going to be happy. See, अगर मैं फ्रेंड्स के साथ चली जाती हूँ तो I'll feel guilty कि मैंने मेरी बेटी को टाइम नहीं दिया. If I give time to my daughter, I will feel guilty for myself कि मैं मेरे फ्रेंड्स के साथ जाके एंजॉय नहीं कर पाई because I have planned it already. So what to do in this situation? We have to try to find out solution कि हम उस चीज को कैसे बैलेंस कर सकते हैं, क्योंकि है ना दोनों केसेस में हमको दुखी होना है नहीं होना है ना, तो कोई तो हमें सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा. So what we can do is try to manage things around making कि हम लोग उसको आगे पीछे कुछ एडजस्ट करके उसमें जाए. Suppose if my party is for 1 or 2 hours, what I can do, या तो मैं वहां पे 1 घंटा कम करके वहां चली, मतलब उसमें 1 घंटा कम करके 1 घंटा मेरी बेटी को भी दे दूं और पार्टी में भी चली जाऊं, या फिर मैं मेरी बेटी को बोलूं कि राइट नाउ आई एम गोइंग फॉर द पार्टी, बाय द टाइम यू फिनिश उसका जो भी हम बेसिक लेआउट है जो वो कर सकती है, दैट आई विल डेलीगेट हर कि ये सारा रेडी रखना. देन वेरेवर द फर्दर प्लान ऑफ दैट प्रोजेक्ट जहां पे मेरी हेल्प रिक्वायर्ड है, देयर आई विल कम एंड हेल्प. एंड यू नो गाइस, ये एक्चुअली ना सॉल्यूशंस ना बहुत इजीली मिलते हैं फॉर एनी सिचुएशन. ये मैंने बहुत छोटा बेसिक एग्जांपल बताया है, लेकिन इन लाइफ all the situations that we face, they have solutions. It is just that हमारा माइंड ना हम लोग ओपन रखते नहीं है कि हम लोग कैसे क्या चीजों को हमारे फेवर में कर सकते हैं. So we have to be open to find out solutions कि हम लोगों को चीजें कैसे करनी है कि हम लोग बाउंड्रीज भी सेट कर सके. Okay, boundary setting I'll be covering in one of the day. So right now I'll not talk much about it, but I'll say you one छोटा सा definition कि boundary settings क्या होता है. Boundary settings is basically building one wall around us जहां पे हम लोग ना हर एक को हाँ नहीं बोलते हैं. We say yes only and only when we feel that it is not affecting our affecting us. अगर हम लोग हमारा घर ले जहाँ पे लाइक बाउंड्री ना हो, जो कंपाउंड वाला जो पहले ऐसे लाइक विलास टाइप जो होते थे हमारे पास, नॉट लाइक अभी तो फ्लैट में हो गया, लेकिन जहाँ पे वो ऐसे वॉल होती है बाउंड्री, अगर वहां पे बाउंड्री ना रखा जाए तो कोई भी आके एंटर करके और वो हमारा गार्डन या जो भी होगा उसको खराब करके चला जाएगा, राइट? सो व्हाई वी कीप दैट बाउंड्री? टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ, टू प्रोटेक्ट आवर थिंग्स जो हमने मेहनत से उगाई है उस गार्डन में, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग वो बाउंड्री बनाते हैं. तो यहाँ पे वही करना है, हमें खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए वो बाउंड्री बनानी है. So we will be covering it in detail later. This is what just the glimpse कि क्या होता है boundary setting. Here we want to protect ourselves. For that we need to do the need to create a boundary around us कि हमें किसको yes बोलना है और किसको no बोलना है. Now let's come back to self love. Okay. So tell me guys कि what is self love according to you? सिर्फ spa जाना, पार्लर जाना, मसाज करवाना, यही सब सेल्फ लव है? वो तो पैम्परिंग है. या व्हाट लीना? वो तो पैम्परिंग है. पैम्परिंग है, राइट, दैट इज पैम्परिंग आवरसेल्फ. हाउ अबाउट अदर्स? tell type in the chat box if you are not comfortable, or unmute and say, even if you are behind the camera, I'm fine, just unmute and say guys, because I want this session to be interactive. ऐसे like मैं बोलती रहूंगी ना तो आप लोगों को तो मजा तो कुछ आना ही नहीं है. Okay, Karishma is typing in the chat box, never speaking low about yourself. Open each part of. Yes, right. हमें कभी
Hi, Anita. Self-love, according to me, is loving yourself. It's not that pampering and all. You should, own the things you have. अपनी बॉडी से प्यार करो, अपने टैलेंट से प्यार करो, अपनी वीकनेसेस से प्यार करो. दैट इज सेल्फ लव अकॉर्डिंग टू मी. यस एग्जैक्टली, सिर्फ हमारी स्ट्रेंथ से नहीं, हमारी वीकनेस से भी हमें प्यार करना होगा. वेरी नाइस मोना. आई एम लाइक ग्लैड कि यू नो दिस इम्पोर्टेंट पॉइंट, क्योंकि हम लोग क्या सोचते हैं, सिर्फ हमें ना पॉजिटिव अच्छी चीजों के लिए हमें प्यार करना चाहिए, नेगेटिव चीजों के लिए अपने आप को लाइक ऐसे बैश करते रहना चाहिए. नो, नॉट एट ऑल. व्हाई? बिकॉज वो हमारे सेल्फ एस्टीम को हम खुद ही लो कर देते हैं. इज देयर यहाँ दुनिया में कमी है क्या लोगों की, जो हमारा सेल्फ एस्टीम डाउन करने के लिए कोई कमी है लोगों की, कि हम लोग एक और जन ऐड कर देते हैं अपने खुद. वी शुड नॉट डू दैट. वी शुड एम्ब्रेस आवर वीकनेसेस एज वेल, क्योंकि वो वीकनेस समवेयर दैट वीकनेस इज अ ट्रिगर पॉइंट फॉर अस टू इम्प्रूव अवर सेल्फ. तो वो जरूरी होती है. सो जस्ट ऐसा नहीं बोलूंगी कि वीकनेस के साथ रहते रहो. वीकनेस है, उसको एक्सेप्ट करो, फाइंड आउट द सॉल्यूशन हाउ टू गेट आउट ऑफ इट. सपोज कि ओके, टाइप इन द चैट बॉक्स व्हाट डू यू फील कि आप लोगों की वीकनेस क्या है. Or you can unmute and say hi Sonal, thank you for joining in. Yeah, Welcome. type in guys, or say unmute करके बोलो, behind the cameras बोलो, I don't mind. Okay. Can I speak? मेरी weakness, I get very triggered very soon and फटाक से जवाब आ जाता है. Okay, so you think that this is your weakness? Okay. Sometimes. And some others might feel कि यार क्या मस्त फटाफट जवाब देती है बंदी. So yeah, you can work around it. You just make a list of all the weaknesses. एक साइड लिखो सारी weaknesses, एक साइड लिखो सारे उसके solutions कि इसको overcome कैसे कर सकते हैं. Okay, let me take an example कि यहाँ पर करिश्मा is saying inconsistency, Leena is saying laziness, Anshika is saying perfection. Okay, so we will I'll pick up one example. कौन सा लू? Okay, take suppose कि inconsistency. ठीक है, हम लोग को पता है कि हम लोग inconsistent है. So now we know what is our weakness. Now we have to find the solution कि हम लोगों को ये वाली inconsistency क्यों हो रही है. Find out everything. हमें 5 W questions पूछने होते हैं बेसिकली. Why? क्यों हो रही है inconsistency? Where? किस वजह से, मतलब हम लोग जहां पे है वहां क्यों हो रही है वो इनकंसिस्टेंसी की. सपोज कि टेक एन एग्जांपल कि हमें इनकंसिस्टेंसी हो रही है कि हम लोग इंस्टाग्राम पे पोस्ट बनाना चाह रहे हैं रेगुलरली बट नहीं बना पा रहे हैं. तो वेयर इट इज हैपनिंग ऑन इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालने के लिए. फिर व्हाट, वेयर, फिर व्हेन, कब हो रही है. अगर रेगुलरली हो रही है इसीलिए इनकंसिस्टेंसी बोल रहे तो इट्स हैपनिंग रेगुलरली. एंड who is responsible for that inconsistency? So we are responsible. Now the main important is why it is happening, वो हमें ढूंढना है. तो बेसिकली वो हमारे या तो माइंडसेट की वजह से हो रही है कि हम लोग उसको लाइक ध्यान नहीं दे रहे हैं कि वो हमसे क्यों नहीं हो रहा है टास्क. बिकॉज ना इनकंसिस्टेंसी होने का दो मेन रीजन होते हैं. एक तो या तो हमें इंटरेस्ट नहीं है, दूसरा या तो हमें है ना हमने उसको प्रायोरिटाइज नहीं किया हुआ है. सो लाइक दिस देयर विल बी मल्टीपल रीजंस. ये 2 मेन है बट देयर विल बी मल्टीपल रीजंस फॉर दैट. सो फाइंड आउट ऑल द रीजंस एंड देन सिट एंड एनालाइज कि ये सारे हमें क्रॉस कैसे करने हैं वन बाय वन. And then you will be moving to the next step, that is consistency, जो कि ultimately आपको फिर से खुशी वाले स्टेट में ले जाएगा, क्योंकि जब चीजें हमारे हिसाब से होती है तो again we reach the happiness. So now I will tell you
more about self love कि self love में क्या क्या चीजें हम लोगों को डालनी चाहिए. पहली बात तो हम लोगों को बहुत सी बार पता ही नहीं होता है कि हम लोगों को पसंद क्या है. हम लोगों की लाइफ लाइक ऐसे रूटीन में चलती जाती है, चलती जाती है, चलती जाती है, एंड वी फॉरगेट. हम हमारी खुशी के बारे में भूल ही जाते हैं. जस्ट आई वांट यू टू डू वन एक्टिविटी राइट नाउ for 2 minutes. Close your eyes, and there is one train, happiness train is coming. Okay, you're standing there, its gate is opening, get inside it. बहुत अच्छी खाली ट्रेन है, बाहर ना एकदम मस्त वाला सीनरी है. जो भी आपको पसंद है वो सीनरी इमेजिन करो. पहाड़ पसंद है तो पहाड़, नदियां पसंद है तो नदियां, whatever. So that is around the train, and the train has started moving. Now go back to your old school days, college days, when you used to have fun, and try to remember कि तब आप क्या चीजें ऐसी करते थे जो आपको खुशी देती थी. Just try to imagine कि what were the things. Talking with your friends, गपशप करना, मूवी जाना, छोटे छोटे से लाइक चीजें लाइक टिफिन बॉक्स शेयर करना. किसी के टिफिन में से कोई चीज बहुत पसंद है तो उससे ले लेना, उसको देना ही नहीं, उसको बोला तू मेरा टिफिन खा ले, मैं तेरा ये मुझे तेरा ये चाहिए, एंड हैप्पीली ऐसे शेयर करना. या फिर whatever. So just I will be like silent for another 30 seconds. You try to recall कि कौन सी चीज ने आपको हैप्पीनेस दी थी पहले. It can be drawing, painting, singing. कोई आपने कोई विन किया था, कोई कंपटीशन, कोई जगह पे आपको बहुत अपलॉड मिला था. Try to recall such small joys, small things that used to give you happiness. It can be as small as eating a chocolate, wearing a new dress on your birthday, waiting for everyone to remember your birthday and wish you. It can be love from your parents. It can be the small events that you enjoyed with your siblings or friends. Okay, I hope you have now some beautiful memories from your past. And if any of the negative memories coming, think that as the train is moving fast, वो सारी negative memories window से बाहर जा रही है, only you are keeping the good memories with you. If you let the negative memory enter, ट्रेन रुक जाएगी and आपकी happiness की journey stop हो जाएगी. So don't let that negative incident enter. And now just enjoy all those moments, small things that used to give you joy. I hope you have some good amount of memories, and now come back. Say, get down from the train and say bye-bye. Be with me. I love you, and keep coming. And now tell me guys कि कैसा लगा आपको? How did you felt?
कुछ याद आया आपको, क्या चीजें खुशियां देती थी? Felt awesome. Thank you. ओके मोना, व्हाट डिड यू रिकॉल? एक हाथ आप बताओगे? Arey, so many things to recall, especially the school days. I remember the My school God. days because being a teacher, I was missing my school days. So honestly, it was only school days. Loved it. Thank you. ओके ओके, New pencil, new rubber also, we were happy with that. या small Uh, things, new And pencil, the new tiffin, rubber. tiffin after the birthday, the next day we had all the cake wafers in the tiffin. Right, right. So like this, see, इसमें आपको किसी और की जरूरत नहीं है, right? This you can anytime, जब भी आपको लगता है मुझे खुश होना है, close your eyes, get into the happiness train and start the journey. यहाँ पे आपको किसी की जरूरत नहीं है. This is a small activity that I have given you, जहाँ पे जाके आपने ढूंढा कि क्या चीजें आपको खुशी देती थी. But do you do them now? Did you ever ask yourself a question? कभी आपने रुक के अपने आप को पूछा है कि what are the things that give me happiness? Lays down all the things and you will come to know, oh wow, ये इतनी छोटी छोटी चीजें भी मुझे खुशी देती है, and I forgot to take out time from them. तो ये अनीता, सारा क्यों होता है? क्योंकि हम डे टू डे लाइफ में इतने ज्यादा उलझ जाते हैं कि हम सोचना ही भूल जाते हैं हमारे बारे में. एंड व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू थिंक अबाउट आवरसेल्फ? बिकॉज जब हम खुद के बारे में सोचना भूल जाते हैं, वी एक्सपेक्ट अदर्स टू गिव अस द हैप्पीनेस, टू डू द थिंग्स दैट वी लव फॉर टू बी डन फॉर अस. पर ऐसा होता नहीं है. एंड देन हाउ हम लोग कैसे बन जाते हैं अंदर से? बिटर. हमें गुस्सा आता है, हम क्रीप करने लग जाते हैं, हम ब्लेम करने लग जाते हैं लोगों को. मैं तुम्हारे लिए इतना करती हूँ, तुम लोग मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते. why we want to blame, why we want to do all those things? Why can't we do all those things for ourselves? अनीता, अभी मैंने जब यू वर डूइंग दैट मैंने रियलाइज किया आई यूज टू डांस, और अभी छूट चुका है एकदम. तो वो मेरा हैप्पीनेस चीज शायद मुझे फिर से रिवाइव करने की जरूरत है. Exactly. And see, for dancing you don't need anybody, just put on the music, चालू हो जाओ. Yeah. तो like this, हम लोग ना जब ये छोटे छोटे एक्टिविटीज खुद को फुल करने के लिए करेंगे ना, at that time we won't need anybody else. आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई आपको अप्रिशिएट नहीं करता है, go stand in the front of mirror and start appreciating every damn thing. You tell yourself कि मैंने ये किया है, मैंने ये किया है, मैंने ये इतनी चीज इतने परफेक्टली की है. Even it can be as small as making your breakfast today and serving to your family members. Do you think that is a small thing? Anybody can do it? No. So appreciate yourself for all such small things. It's very important. And ये सब ना आप जब मिरर के सामने अपने आप को देखोगे ना, that time I don't want you to look here and there. कहीं भी नहीं देखना है, अपने आंखों में आंखें डाल के देखना and appreciate as if you are speaking as a third person. Like जैसे हम हमारे फ्रेंड से बात करते हैं ना, वैसे बात करो कि tell, wow Anita, you are so awesome. आज you did your exercise in spite of having such jam-packed schedule for the day. Anita, you get up at perfect time when the alarm rang. That is a big achievement. कितने लोग snooze करके छोड़ देते हैं and then the full day goes for a toss. So that is also such an important क्या बोलते win. Then ऐसे ना पूरे दिन में ऐसे छोटे चीजों सारे के लिए अपने आप को अप्रिशिएट कर दो एंड देन सी कि हाउ यू फील. आपको इनिशियली बहुत ऐसा लगेगा कि खुद की क्या ही तारीफ करूं मैं, बट वन डे यू विल रियलाइज कि यार
how many things you do, why you need others appreciation? You should be your biggest cheerleader. And the happiness that you will feel कि यार मैं तो इतना सारा करती हूँ, मैंने तो ये सारी चीजें इतने परफेक्टली की है, जब आपको पता होगी तो आपका एटलीस्ट सम अमाउंट ऑफ दैट क्रीपिंग ब्लेमिंग ना अपने आप चले जाएगा. एंड ये एकदम से नहीं होगा गाइस, यू हैव टू लाइक कीप इट प्रैक्टिसिंग डे बाय डे. अगर आज आपको लग रहा है कि मैं बहुत सारा कुछ ही अप्रिशिएट करती, गो स्टैंड इन द फ्रंट ऑफ मिरर, एक चीज बोल दो जाके, यार अनीता क्या मस्त तूने है ना सब लोगों को हैप्पीनेस का वर्कशॉप सिखाया आज तो. लाइक आई एम टेलिंग माय सेल्फ, ऐसे मैं जाके बोल दूंगी मिरर में जाके, वाह यार अनीता, मतलब चाहे कोई मुझे अप्रिशिएट करे ना करे, चाहे मेरे को कोई, मुझे पता है, हमें पता होता है कि हमने उसके पीछे कितने एफर्ट्स डाले होते हैं. nobody else knows that. so वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं और कर देते हैं, तो दैट इज अ बोनस फॉर अस. Try to appreciate ourselves for all the small things. This is the activity you will be doing today. अगर आपको लगता है कि मैं बहुत ज्यादा नहीं कर सकती हूँ अपने आप को अप्रिशिएट, डोंट वरी, एक चीज तो पक्का मिल जाएगी आपको. और नहीं कुछ मिल रहा है तो आई टेल यू कि I took out time for attending the happiness workshop to increase my happiness quotient. Just go and tell yourself कि वाह अनीता या वाह करिश्मा या वाह अंशिका, आज तूने ना कमाल कर दिया, अपने लिए टाइम निकाला एंड जाके सीखा कि कैसे खुश रहते हैं. So like this, try to find out all the small things that you do for yourself, that you feel proud of, जो आपको लगता है कि दूसरों को करनी चाहिए आपके लिए. No, don't wait. क्यों चाहिए दूसरों से? अगर हम लोगों ये अपने आप का ना एक्चुअली कप को फुल करना होता है. Why we need this? To fill our cup, because हम लोग पूरे दिन देते रहते हैं ना, तो वो अल्टीमेटली एम्प्टी हो जाता है. तो what remains in the cup? खाली कप से आप क्या क्या दोगे लोगों को? अगर आपके पास लव है, आपने खुद को अप्रिशिएट किया है, तो आपके पास आपका कप फुल है, तो आप दूसरों को लव बांट सकते हो, आप दूसरों को अप्रिशिएशन दे सकते हो, बिकॉज यू आर फुल फ्रॉम इनसाइड. तो जब आप फुल रहोगे ना, तो आप वो सबको बांट पाओगे. तो हम लोगों को क्या लगता है पता है, हम लोगों को बचपन से क्या सिखाया गया है, यार दूसरों के बारे में सोचने का, सबके बारे में सोचने का, सब लोग इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी लाइफ में, और जो लीस्ट इंपॉर्टेंट होता है वो खुद होते हैं, क्योंकि वी आर सेल्फिश व्हेन वी थिंक अबाउट आवरसेल्फ. बट लेट मी टेल यू गाइस, ये है ना लाइक ऐसी कंडीशनिंग है ना जो हम लोग को वन डे बिटर बना देती है, एक दिन हम लोगों को अंदर से हॉलो कर देती है. हैव यू फेल्ट दैट एनी टाइम कि हम देते ना एक दिन लाइक एकदम दुखी हो जाते हैं, ऐसा लगता है कि क्या है मेरी लाइफ में, मैं सबके बारे में सोचती हूँ, सब कुछ करती हूँ, किसी को मेरा ख्याल क्यों नहीं है. एंड फिर क्या होता है, वही हम दुखी होते हैं, हम वही सब में बांटते हैं, हम गुस्सा करते हैं, हम चिल्लाते हैं, लेकिन किसी को समझ में ही नहीं आता है कि हम क्या गो थ्रू कर रहे हैं. राइट? तो इन दैट केस, जब हम लोग खुद को खुश रखते हैं ना, हम लोग एक्चुअली सबका भला कर रहे हैं. हम खुश रहेंगे तो हम बच्चों से भी अच्छे से बात करेंगे, पति से भी अच्छे बात करेंगे, इन लॉज से भी अच्छे से बात करेंगे, फ्रेंड्स से भी अच्छे से बात करेंगे. तो बेसिकली हम लोगों को लगता है कि हम लोग सेल्फिश हो रहे हैं, बट हम लोग एक्चुअली सेल्फलेस हो रहे हैं, क्योंकि बिकॉज वी हैव डिसाइडेड कि हमें खुश रहना है, हमारे हैप्पी वाइज हमारे अराउंड, हमारे सराउंडिंग्स में भी स्प्रेड होते हैं, एंड दैट रिलीजेस हैप्पी हार्मोन्स इन आवर बॉडी, कि जो हमें फिर नेगेटिव चीजों से फाइट करने के लिए हेल्प करते हैं. सो द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ लव इज कि हम खुद को जब भी प्रायोरिटाइज करेंगे, हमारी चीजों को हम फुलफिल करेंगे, हम खुश रहेंगे, तो अल्टीमेटली वी विल राइज इन आवर ऑरा. हम लोग हमारे खुद के वाइब्स को बड़ा करेंगे, जो कि हमें हर फील्ड में हेल्प करेगा. सी, अगर आप लोग एक ऐसा छोटा सा चीज ले लो कि आज आपको कुछ करना है, इट कैन बी एज स्मॉल एज what you all commonly do, let me think,
इट कैन बी एज स्मॉल एज मेकिंग टूडेज लंच, ठीक है? तो आज आप यहाँ से खुश होके जाओगे ना, एंड फिर जब आप लंच बनाओगे तभी आप लोगों के वाइब्स चेक करना। या तो आप ऐसे मस्त गुनगुनाते हुए खाना बना रहे होंगे, या तो फिर आप क्या बोलते हैं, कुछ बैकग्राउंड में म्यूजिक लगा के डांस करते करते खाना बना रहे होंगे, या फिर एटलीस्ट आपके दिमाग में ना अच्छे थॉट चल रहे होंगे। क्रीबिंग वाले, ब्लेमिंग वाले, वो सारे थॉट्स थोड़े बैक सीट पे चले जाएंगे। सो बेसिकली उसने आपको क्या हेल्प किया, हैप्पीनेस ने आपको क्या हेल्प किया टू रेज योर वाइब्स इन वॉट एवर थिंग यू आर डूइंग। वहां पे आप कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, आपका फोकस बढ़ेगा, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। तो व्हाई डोंट वी टेक बेनिफिट ऑफ इट, राइट? कि अगर हम लोग को ये सारी चीजें हैप्पी रहने से मिल सकती है, तो व्हाई नॉट वर्क फॉर इट, स्टार्ट वर्किंग फॉर इट एंड चेकिंग योरसेल्फ। लाइक आपको चेक करते रहना होगा, कि बहुत जल्दी हम लोग ना नेगेटिविटी हमें खींच लेती। वी गेट 60,000 थॉट्स इन अ डे, एंड बिलीव मी गाइस, उसमें से ना 50 से 55 तो नेगेटिव ही होती है। तो हम लोग को इसलिए थोड़े से कॉन्शियस होके ना बार बार उसमें पॉजिटिव वाले जोन में जाना पड़ेगा टू कीप अवर सेल्फ हैप्पी। एंड ये सारी चीजें, लाइक आज जो मैंने बात की, ये सारी छोटी चीजों के बारे में बात की है, स्मॉल 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 जॉयज ऑफ अ लाइफ। लेकिन देर आर लाइक बड़ी चीजें भी होती है जिसके लिए हम लोग खुश होते हैं। वो दोज आर लाइक इनर हैप्पीनेस एंड आउटर। लाइक ये भी सारी चीजें जो हमने बोली है, वो थोड़ी सी बाहर की चीजों पे डिपेंडेंट है, कि हमने आइसक्रीम खा ली, या हमने बाहर से कोई चीज ली, उसकी वजह से हमें खुशी मिली। लेकिन हम लोग अंदर से कैसे खुश रह सकते हैं, वो भी हमें सीखना होगा। क्योंकि अल्टीमेटली ना, ऐसा भी हो सकता है कि बाहर पूरा कैओस चल रहा हो, बाहर पूरा नेगेटिव एनवायरनमेंट हो रहा हो, लेकिन हम लोग हमारे अंदर ऐसे जाके और खुश रह सकते हैं कि जिसको जो करना है करे, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता है। मैं अंदर से लाइक मैंने डिसाइड कर लिया कि ये बाहर, ऐसे मैंने वॉल बना लिया है अपने लिए, कि ये बाहर की चीजें मुझे बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं कर सकती है। इस तरह से हम लोग को, लेकिन वो सब ट्रेनिंग से आता है, ऐसे नहीं आएगा कि हम लोगों को बाहर के एनवायरनमेंट नहीं इफेक्ट कर रही है। उसके लिए बहुत लाइक हमें खुद के ऊपर वर्क करना होता है। बट या लाइक दैट ऐसी सिचुएशंस होती है। कभी कभी आप लोगों ने भी देखा होगा कि आप फुल ऑन भीड़ के बीच में भी आपको ना एक थॉट अगर आता है, तो आपको ऐसा लगता है कि वाओ, एंड यू फॉरगेट अबाउट जो भी कच 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 जो भी आसपास हो रहा है ना, सब भूल जाते हो, एंड देन यू रिमेम्बर दैट मोमेंट। तो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज हमारे स्टेट ऑफ माइंड पे ही सब कुछ डिपेंडेंट है, हमारी खुशी भी। सो गाइज, होप यू एंजॉयड टुडेज सेशन। डू please do the activity of standing in front of mirror and appreciating yourself, and share me the feedback आपको कैसा लगा। एंड आई डोंट वांट यू टू डू जस्ट ऐसा रोबोटिक, जाके खड़े हो गए और कर लिया जस्ट बिकॉज मैंने बोला है। नो, वहां जाओ, खड़े रहो, 2 मिनट गहरी सांस लो, ताकि आप लोग वहां पे आ जाओ उस प्रेजेंट मोमेंट पे। डीप ब्रेथ्स लो, देन स्ट्रेट लुक इनटू योर आईज, अपने आंखों से आंखें देख, मिलाना जरूर। ओके? कभी देखा है खुद को, खुद को खुद की आंखों से देखा है? मुझे नहीं लगता, मैंने भी एक्टिविटी जब पहली बार की थी ना, मेरी आंख में लिटरली आंसू आ गए थे। यार, मैंने खुद को देखा भी नहीं है खुद से। व्हाई? जो सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन है मेरी लाइफ का, मैंने खुद को देखा भी नहीं। सो गो स्टैंड इन द फ्रंट ऑफ मिरर, लुक इनटू योर आईज, एंड देन टेल। जितने तारीफों के पुल बांधने हैं ना, बांध दो। बिकॉज सी, appreciation for yourself in private is your tool, आपका हथियार है। लेकिन बाहर की दुनिया में जाके आपको नहीं बोलना है कि भैया मैंने ये किया, फिर उसको ना वो लोग बोलेंगे कि अपने मुंह मियां मिट्ठू। उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। लोगों को
लोगों को नहीं बताना है जाके कि हमने क्या क्या किया है, हमें पता होना चाहिए लेकिन कि हमने क्या क्या किया है, what all things we deserve, what all things we have done the best. So this activity is basically for increasing your self love, your self worth. क्योंकि जब हम लोग हमारे ये इंक्रीज करते हैं ना, तो कोई भी आके ना हमको ऐसे एकदम से गिरा नहीं सकता है, कोई भी आके हमको ऐसे क्या बोलते हैं, उन्होंने ऐसे ट्रिगर किया और हम लोग ऐसे ट्रिगर हो जाएंगे। उनने अगर बोल दिया कि तुमने खाना बना लिया तो कौन सी बड़ी बात है, हमें पता होगा हमने खाना बनाया तो कौन सी बड़ी बात थी, कितनी उसके पीछे हमने एफर्ट्स डाले हैं, हर चीज को अरेंज करने से लेकर उसे बनाने से लेकर उसे सर्व करने तक हमें पता होती है, राइट? सो forget about everybody else, appreciate yourself. This is the activity I want you to guys to do, and do share in the WhatsApp group कि आपको क्या क्या फील हुआ when you did that activity. I'll be happy to know कि आपको अच्छा लगा या फिर बहुत अच्छा लगा या फिर आप रोए, whatever emotions that you went through. So hope you guys enjoyed this session and you will stay happy throughout the day. Bye. See you guys tomorrow at 11 a.m. with some new topic to learn about happiness. All the best. Have a nice day, guys. Happy day hona chahiye. Have a nice day. Same to you. Okay.